Hello everyone. So today we are going to discuss the day 5 of the anthropology optional. So in the day 5 we were talking about the unit 2.2. So that is about the basic part of which is about the society. तो society वाले उसमें जो first आपका question निकल कर आता है that is what is the basis of the social stratification discussed with some of the examples. So as you know this question is very direct. इसमें पूछा गया है क्या that कि basis क्या है social stratification का, बेसिस क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एंड डिस्कस दैट विद सम ऑफ द एग्जांपल. कुछ एग्जांपल्स के साथ जो है आप उसको डिस्कस करिए. तो पहला आपका क्या रहेगा दैट इंट्रो में यू आर गोइंग टू डिस्कस सम द बेसिक मीनिंग ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. सो मीनिंग से आप इसको स्टार्ट करेंगे. देन यू आर गोइंग टू टेल द प्रोसेस जिसके थ्रू जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है. ओके, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द बेसिस, बट बेसिस पे अगर आप डायरेक्टली आओगे एंड दिस इज गोइंग टू बी अ 15 मार्कर क्वेश्चन. सो फ्रॉम द वीक 2 आपने देखा होगा लाइक द डे 6-7 वहाँ पर मैंने अलग से मार्किंग भी दे दिया है दैट कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको ये लिखना है. सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि कितने वर्ड्स में लिखना है. एंड यू नो वेरी वेल दैट जो आपके 10 मार्क का क्वेश्चन होता है वो 150 वर्ड में लिखना होता है, 15 का 250 वर्ड में एंड देन 20 का 300 वर्ड्स में लिखना होता है. सो इन दिस क्वेश्चन पहले हम फोकस करेंगे अबाउट द मीनिंग ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द बेसिक प्रोसेस थ्रू विच द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज गोइंग टू हैपन एंड आफ्टर दैट हम डालेंगे क्या कि बेसिस क्या क्या हो सकते हैं. सो whenever you are mentioning all these points, so you need to be very you have to pay attention over the fact that you need to mention some of the examples related to this. So in this particular question what you are going to tell that कि social stratification basically होता क्या है. Stratification means what, that whenever you are grouping the things, जब आप things को groups की form में divide कर रहे हो, that is basically the social stratification. ये क्या है, it is a kind of social inequality. Why? Because जब आप स्ट्रेटास डिवाइड कर रहे हो तो why on which basis you are going to differ one strata from the other. It may be quite possible one is at the upper end, another one is at the lower end. So basically on the basis of the birth, on the basis of the caste, on the basis of the income level, so you are going to divide that this person is from the higher caste, this is from the lower caste, this person is rich, this person is poor. So on the basis of this fact you are going to mention the basic thing that कि किस तरीके से ये social inequality को show करता है. After that you will mention that social stratification, it means what, it is means the division of the society. किसमें, in the number of the stratas, and every strata, within the strata there is a kind of similarity, between the stratas there is a kind of differences. So that's why we are grouping similar person into one strata, into one group. So that's going that is the basic meaning of the social stratification और उसको आप जो है यहाँ mention कर दोगे. After that you are going to mention one or two of the definitions. So ideally मैंने यहाँ पर आपको मॉडल आंसर में 2 definitions प्रोवाइड करवाई है so that कि आपको जो easy लगे आप उसको याद करो and I hope आपने याद करके लिखा भी होगा. So the first point is as per the Ogburn and Nimkov that the process by which the individual and the group they are ranked in more or less enduring hierarchy of the status which is known as the stratification. So इसमें से एक जो है आप अपने तरीके से याद कर लेंगे. After that we are going to mention the process of the social stratification. So under the process it would be better that you are going to show that process with the help of the diagram. So if you will show the diagram तो आपको फिर प्रोसेस के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो दैट्स वाई जो प्रोसेस वाला पार्ट है यू विल शो विद द डायग्राम. उससे क्या होगा, आपका डायग्राम भी शो हो जाएगा, उससे क्या होगा, प्रोसेस भी आपने शो कर दिया और आपने ज़्यादा स्पेस का भी यूज़ नहीं किया है. सो उसके बेसिस पे आप जो है उस तरीके से अपने इसको बेटर वे में करोगे. सबसे पहले आप क्या मेंशन करोगे दैट जब भी आपको स्ट्रेटिफिकेशन करना होता है सो आपके पास एक बेसिस होना चाहिए स्ट्रेटिफिकेशन. So that basis is going to be the differentiation. After the differentiation आप क्या करोगे, after the you will going to be comparing the stratas. जो stratas आपने divide करे हैं उनको आप compare करोगे. After comparison what you are going to do is you are going to reward. Reward means the designation जो आप उनको जो है provide करवाओगे. And
आफ्टर द डेजिग्नेशन आपने जो है फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने जो है डिफरेंशिएशन कर दिया, आफ्टर दैट आपने उनका कंपैरिजन कर दिया, देन आप जो है उनको डेजिग्नेशन प्रोवाइड कराओगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप जो है आपका हो जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। सो इसको आप इस तरीके से मेंशन कर दोगे, प्रोसेस की फॉर्म में यही होना चाहिए। वाई? बिकॉज इसी तरीके से आप जो है प्रोसेस बनाते हो। अब ये तो आप प्रोसेस बना दोगे, इसके तरफ जो है आप यहाँ पर पॉइंट्स लिख दोगे डिफाइन करते हुए अबाउट द डिफरेंशिएशन, कंपैरिजन, रिवॉर्ड एंड स्ट्रेटिफिकेशन। इसको इस तरीके से आप जो है डिवाइड करके अच्छे तरीके से आप बना दोगे। आफ्टर दैट आपका फोकस किस पर होगा? आफ्टर दैट प्रोसेस आपने मेंशन कर दिया है इन द बॉडी पार्ट, आप प्रोसेस को मेंशन कर चुके हो। सेकंड, यू आर गोइंग टू मेंशन द बेसिक थिंग अबाउट द बेसिस। अब बेसिस क्या क्या होंगे? बेसिस जो है वो बर्थ, कास्ट, इनकम, इनके बेसिस पे हो सकते हैं। सो लेट्स सी देम। सो एज यू कैन सी प्रोसेस यहाँ मैंने इस तरीके से मेंशन किया, बट यू नीड टू मेंशन दैट इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इंट्रो आ जाएगा, उसमें डेफिनेशन आ गई, उसके बाद बॉडी पार्ट में आप क्या करोगे? आप प्रोसेस लिखोगे एंड उसको फॉर्म कर दोगे एक डायग्राम की फॉर्म में। तो प्रोसेस के बारे में या उनके पॉइंट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर किसको एक्सप्लेन करोगे? बेसिस, विच इज़ बीन आस्क्ड बाय द क्वेश्चन। सो बेसिस में क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है? फर्स्ट होता है बर्थ। बर्थ के बेसिस पे दैट कि अगर आपने नोबल के घर में बर्थ लिया है, दैट्स गोइंग टू बी, यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द हायर स्ट्रेटा। और अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो लोअर पर्सन के वहाँ पर अगर आपने मान लीजिए किसी आपने स्लेव के घर पर आपने बर्थ लिया है, तो यू आर गोइंग टू बी द स्लेव। सो दैट इज द बेसिक पॉइंट। आफ्टर दैट आप मेंशन करोगे क्या? वेल्थ। वेल्थ बेसिकली द इनकम। सो दैट्स उसी के बेसिस पे आपका जो है एक्सप्लेनेशन रहेगा। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हो सकता है, एजुकेशन के बेसिस पे हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिस जिनके बेसिस पर आप सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को शो करोगे। फाइन। सो दिस इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन। तो लेट मी जस्ट टेल यू आपने किस तरीके से इसको डिफाइन किया है। पहले आपने इंट्रो डाला, इंट्रो में आपने मीनिंग डाल दिया ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। उसके बाद आपने डाला है इसका डेफिनेशन। आफ्टर द डेफिनेशन फिर आप आ जाओगे बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में आपने प्रोसेस शो कर देना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम के बाद आपको एक्सप्लेन करना है आफ्टर द प्रोसेस द बेसिस, basically the criteria, and then you are going to mention the conclusion. So that's going to be your model answer for this question. I hope आपको क्लियर हो गया होगा।